سسٹر آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم کسی کی السلام. بھی بات نہیں آ رہی. ہاں جی، کوئی بھی وعلیکم بات نہیں آ السلام. رہی. باجی کی مجھے اب آ لگتا ہے رہا ہے؟ آواز نہیں. اب آ ہاں رہی جی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے ٹھیک ہے باجی، آ رہی ٹھیک ہے ہے. آ ہاں رہی. جی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ آ آمین. کے بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، اور تھوڑی سی پرابلم ہونے کی وجہ سے میں نے دیر سے میں نے شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے. تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ آج ہم پریکٹس بھی کریں گے، شروع کریں گے، کیونکہ ہم حروف مدیہ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ آج ہم حروف ہلقیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم پریکٹس کریں گے قرآن سے. تو قاعدہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب قاعدہ شروع کریں گے نا تو آپ کو ان حروف کی یعنی کہ پہچان آ چکی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری امری واحلل واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ آپ کی جو چارٹ ہے وہ اس کو دیکھوں، کیونکہ کئی دفعہ جب میں بزی ہوتی ہوں تو شاید آپ کی چارٹ اوپر چلی جائے، تو وہ بعد میں انشاءاللہ میں چیک کر کے آپ کو جواب دے سکتی ہوں انشاءاللہ تعالی. ویسے بھی میں جب آپ کو کھولوں گی تو مائک آپ کا انمیوٹ ہوگا، تو آپ انشاءاللہ تعالی اپنی پریکٹس بھی بات کر سکیں گے اور اپنی جو بات ہوگی وہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. ابھی میں آپ لوگوں کو میوٹ کرنے لگی ہوں تاکہ پیچھے سے جو کوئی جوائن ہو رہا ہو اس کی آوازیں نہ آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم نے فوزی بہن آپ انمیوٹ کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. تھوڑا سا ریکیپ ہے، ریویژن ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کل کون سے 3 حروف پڑھے تھے اور ان کا مخرج کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ سسٹر، وبرکاتہ. کل ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ہم نے حروف الف اور واو اور یا مدیہ پڑھے تھے، اور ان کا جو ان کا کو جو مخرج کا کہتے نام ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے نام بھی لیا ہے، کیا ہے؟ جی ان کو حروف مدیہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ان کا کوئی اور نام ہے؟ جوف، حروف جوف بھی کہتے ہیں. حروف اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، جو کہ ہوا کے ساتھ یہ باہر جی آتی ہیں، اور حروف ہوا ہوائی، حروف جی جی ہوائیہ. حروف تو ہوائیہ کہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی تو واو اور یا کے اوپر آپ کیا دیکھیں گے جب آپ اس کو پہچان کر رہے ہوں گے؟ تو کیا دیکھیں گے اس کے اوپر؟ کچھ ہوگا کہ خالی ہوں گے؟ جی خالی حصہ نظر آئے گا، خالی واو حصے نہیں، میں واو اور یا حروف جو ہیں ان کے اوپر کیا آپ کو نظر آئے گا؟ میم ابھی اس کی تو میں اکیلے نے خالی پریکٹس ہوں نہیں گے؟ کری. جی اچھا ٹھیک ہے. الف ٹھیک ہے. شہناز بہن آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ہاں جی، میں ذرا باہر ہوں، میں ٹھیک ہے باہر ہوں، خالی سن رہی ہوں آپ کا، میں ٹھیک ہے ابھی بول ٹھیک ہے نہیں سکتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باجی؟ میں بتا دیتی ہوں آپ باجی لوگوں میں کو. میں بتاؤں، بتاؤں کیسے؟ باجی میں بتائیں، بتاؤں. ایک منٹ. ہاں جی نازیہ بہن بتائیں. نہیں، میں خالدہ بات کر رہی ہوں. خالدہ بہن ٹھیک ہے. خالدہ بہن ٹھیک ہے. تو یہ یہ
क्या आप पहचान कैसे करेंगे कि ये वाव मदिया है या मदिया है जी, या ये तीन गैर हरूफ मदिया? ज़ौक़ से अदा होते हैं और इसकी जी पहचान हम इस तरह करते हैं कि जब अलिफ को करेंगे तो ज़बर के साथ करेंगे, आ, और ये जब वाव को करेंगे तो पेश के साथ करेंगे, ऊ, और जब हम या को करेंगे तो ज़ेर के साथ करेंगे, ई। माशाल्लाह। तो ये इनके ऊपर आएगी हरकत, ये चीजें जो हैं जबर और जेर और पेश कहाँ आएगी? ये इनके साथ पीछे लग कर आएगी इनके ये। पीछे लग कर आएगी। तो इनसे पीछे पहले हर्फ को देखा जाएगा कि उसके ऊपर क्या है, क्या जी, हरकत है, उसके हिसाब से ये हर्फ जो है आ रहा होगा। अगर उससे पहले हर्फ पर पेश है तो वाओ, अगर जबर होगी तो अलिफ, अगर जेर होगी तो या मदिया। और इनके ऊपर जज्म, हमारे जो कुरान है पाकिस्तान के, इनके ऊपर जज्म दिखाई दे रही होती है। लेकिन दूसरे कुरान जो है, अरबी कुरान जो है, जो दूसरे ममालिक के हम ग्रीन जिल्दों में देखते हैं, मक्का शरीफ में भी और हरम शरीफ में और मदीना में भी, वहां पे शेल्फों पर पड़े होते हैं ग्रीन जिल्द के कुरान। तो हम ब्लू जिल्द, डार्क नीली जिल्द के देख रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट जैसे हमने सीखा होता है उसके मुताबिक होते हैं। वहां पे जज्म आपको मिलेगी इन दोनों के ऊपर। लेकिन जब आप वो ग्रीन कुरान देखेंगे ना, उसके ऊपर आपको जज्म नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो। अगर आप कुरान जो है ऑनलाइन कोई देख रहे हो और वो टेक्स्ट आपके सामने हो और आप कहें कि वहां पे तो जज्म बताई गई थी लेकिन जहां पे तो जज्म है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं? तो वहां पे आपको छोटी सी वाव और छोटी सी या नजर आ रही होगी उस जबर, जेर और पेश वाले हर्फ के सामने। ये नजर आ रही होगी आपको। ये छोटी सी ज्यादातर जो होती है ना, वाव और या ही होती है। अलिफ जो है वो अपनी मुख्तलिफ शक्ल में वहां पे होता है, लेकिन वाव और या मदिया की पहचान आपको वहां पे कैसे होगी? छोटी सी वाव होगी नजर आ रही, और छोटी सी या, बड़ी या ही ज्यादातर होती है, क्योंकि अरबी में बड़ी या नहीं होती, वो एक ही होती है। दोनों या एक ही है, उनकी आवाज भी एक है। हमारे उर्दू में उनकी आवाज मुख्तलिफ है, क्योंकि बड़ी या जो होती है वो आधा अलिफ होती है और आधी अलिफ की आवाज होती है और आधी आधी छोटी या की आवाज होती है। ये हमारा उर्दू है। लेकिन अरबी जो है वो सिर्फ एक ही या है और उसकी आवाज नीचे को ही जाती है। ठीक है, उसकी आवाज नीचे को ही जा रही होती है। तो वहां पे आपको वाव और या के ऊपर जज्म नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। हम अब अपने नेक्स्ट जो है अगला जो मखरज है, ये हमारा क्या था? अल जौफ, यानी के मुंह और हल्क का पीछे वाला खाली हिस्सा, यानी ये जो है खाली हिस्सा। तो अब हम इसको देखते हैं कि हरूफ हल्किया क्या है। ठीक है, हरूफ हल्किया जो है हल्क से अदा होते हैं। हल्क हम पहले ही यानी कि जैसे हल्किया से ही हमारा हल्क उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो क्या हम देखते हैं कि हरूफ हल्किया में ये देखिए, ये हमारा इंशाल्लाह ताला हल्क, जहाँ पे तस्वीर जो ठीक है वो ना मैं दिखाती हूँ। मेरे ख्याल में मैंने इसको जहाँ पे देखे इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे ये हमारा हल्क है, ठीक है, जहाँ से 3 जगहें ऐसी हैं जो हमारे हल्क को 3 जगहों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, याद रहे कि 5 बड़े मेन मखरज थे हमारे निकलने की जगह। जैसे मैंने बताया था, कॉलोनी हो तो कॉलोनी में मुख्तलिफ जगह होती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रीट होती हैं। तो अब इन 5 जगहों से
جہاں سے جو شروع ہو رہی ہوتی ہیں ان جہاں تک وہ 17 مختلف جو ہے سب مخرج یعنی کہ چھوٹے مخرج ان میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے ان کو. تو اب ہم حروف ہوائیہ یعنی حروف مدیہ کے بعد اب ہم آتے ہیں سب سے نچلا حصہ جو ہمارے جسم کا استعمال ہوتا ہے بولنے کے لیے، تجوید کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے، اس کی طرف ہم آتے ہیں جو ہے حلق کا آخری حصہ. حلق کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہم نے. سب سے پہلا حصہ ہم نیچے لیں اقصی الحلق. اقصی الحلق تو اقصی الحلق سے ہمارا آیا حمزہ. جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ اور ہا آنکھوں والی جو ہا ہوتی ہے یہ حمزہ اور ہا یہ ایک گر شیئر کرتے ہیں، یہ ایک مخرج شیئر کرتے ہیں جہاں سے یہ نکلتے ہیں. اس کے اوپر درمیانی حصہ حلق کا جہاں سے ہمارا دوسرا جوڑا 3 جوڑے بنتے ہیں یہ حمزہ اور ہا، عین اینڈ ہا. یہ دوسرا جوڑا ہمارا عین اور ہا ہے. عین اور ہا تھوڑا سا ایسے رگڑا کھا کے نکلتے تھوڑا سا وہاں پہ نا پریشر آتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ تجوید کے ہر حرف کے لیے 2 مخرج استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. 2 مخرج کیسے؟ اب جہاں پہ دیکھیں حمزہ اور ہا، اب جو حلق ہے حلق کے 2 ظاہر ہے 2 جو والز ہیں اس کی 2 حصے جو ہیں وہ آپس میں ایک حصہ دوسرے سے لگ رہا ہوتا ہے. کہہ کے دیکھیں آپ تو پتہ چل جائے گا. لگ رہا ہوتا ہے جو اس کی طرف پریشر آ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے. کسی بھی مخرج میں 2 جو حصے ہمارے جسم کے استعمال ہوتے ہیں اس مخرج کے، اس گھر کے آپ کہہ لیں 2 دیواریں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اس بندے کو ڈھانپنے کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دیواریں دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. کوئی بھی ہو جیسے یہ ہمارا زبان ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے تو زبان جو ہے اس کی سائیڈ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کہ جو دانت ہیں پچھلے ان کے پلیٹوں پہ لگی ہوئی ہے. تو اس طرح ایک حصہ دوسرے حصے سے جا تو پرے ہٹتا ہے، جا پھر اس کی طرف بڑھتا ہے، جا اس کے جا کے اوپر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 حصے ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں جو آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا. میں بتا رہی ہوں آپ کو تو آپ پریشان نہ ہوں، خود لکھ لیں اپنے نوٹس میں. تو 2 حصے استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں پہ عین اور ہا کے لیے بھی اور حمزہ اور ہا کے لیے بھی جیسے حلق کا ایک حصہ دوسرے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں تو ایک حصہ بڑا اس کی طرف ذرا پریشر بلڈ ہوا، وہاں پہ تھوڑی سی جیسے خراش سی پیدا ہوتی ہے کہتے ہوئے ہا اس طرح آپ کو فیل ہو جائے گا جب آپ جزم کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. پیچھے حمزہ یعنی کہ الف لگا کے زبر کے ساتھ یا زیر یا پیش کے ساتھ جس طرح بھی آپ کریں گے زبر کے ساتھ بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے. اب ہم تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں غین اینڈ خا. ان کو میں ایک ایک علیحدہ کر کے بتاتی ہوں پھر، لیکن جہاں پہ غین اور خا جو ہیں اب یہ گھر شیئر کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، ان کی یہ کیسے ہیں، یہ عدات میں کیسے مختلف ہیں وہ ابھی ہم نہیں دیکھ رہے، صرف ہم ان کے گھر کے کس گھر میں جو رہتے ہیں وہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو غین اور خا ایک گھر میں ہی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہی یعنی کہ تعلق ہے ان کا. غین اور خا حلق کے بالکل آخری حصہ ہے لحاظ سے پہلے. ٹھیک ہے، تو آخری حصہ.
ठीक है, जो हमारा होता है ना जहाँ पे कौवा लटका होता है जिसको हम कहते हैं कि कोई स्मॉल टंग भी उसको कहते हैं, और कोई और भी इसके नाम है। तो हम ज्यादा पहचान सकते हैं कि ये देखो लटका हुआ है, जहाँ पे आप देखें तो गौर से तो ये तस्वीर पे आपको नजर आ रहा है जहाँ पे कौवा लटका हुआ है जी। तो इसके जो ऊपर तालु है, नरम तालु, इससे पहले जहाँ पे होते हैं गैन और खा। ठीक है? तो हमारे कितने हो गए? हमजा हा हलक के अक्साई हल्क से वस्ते हल्क जी है, इसको अरबी में वस्ते हल्क कहते हैं, यानी दरमियानी हिस्सा है। इस्तेमाल हम करते हैं उर्दू में भी वस्त का लफ्ज, तो दरमियानी हिस्सा, हल्का दरमियानी हिस्सा। तो जहाँ पे आखिरी हिस्से अदनाल हल्क, अदना हल्क, अदना दुनिया से है, दुनिया नजदीक वाली चीज है जो हमें नजर आ रही होती है, और जो अक्सा है, जो हमारी आखिरत है, वो अक्सा है, हमारे पता नहीं है, उसका नजर नहीं आ रही होती जो। तो ये दुनिया, यानी इससे आप याद रख सकते हैं अदना को दुनिया से। ठीक है, अक्सा लोग नाम भी रखते हैं, उससे भी अगर किसी का नाम फैमिली में हो तो याद हो जाए कि वो दूर वाली अक्सा। तो इंशाल्लाह ताला अब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, हमजा और हा। तो हा जो है बहुत आसानी के साथ अदा हो जाती है हल्क से, बहुत आसानी के साथ हा आ जाती है। हा हा आह आह आप कहें तो ये जो अदा कर रहे होते हैं ना आप, अगर हा को गलत अदा करें तो ये ही हा होती है, आंखों वाली हम। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो ये हा जो, क्योंकि ये आसानी के साथ होती है, और ये याद रहे कि ये सीने की तरफ ज्यादा होती है, मुंह से दूर होती है। ये देखे मुंह से कितनी दूर है ये हमारा मुंह इधर है और कितना दूर है, लेकिन ये सीने के करीब होती है, सीने की तरफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं सीने की तरफ वाला हिस्सा अक्सा हल्क जो है, सीने की तरफ वाला हिस्सा जो हमारा। तो इससे क्या अदा होता है? हा अक्साई हल्क हा हमजा। तो हा हमजा अपने जो है गला उसके ऊपर करें प्रैक्टिस इस तरीके से कि जहाँ पे हम कहते हैं लड़के जब जवान हो रहे हों तो उनकी हड्डी सी बाहर निकलती है, उभरी हुई फील होती है आपको। तो वहाँ पे हमारा जो होता है ना वोकल कॉर्ड, जहाँ से बोलते हैं हम, कल मैंने परसों तस्वीर दिखाई थी आपको, मैंने कहा कि इसको याद रखें, ये जगह जो है जहाँ पे ऐसे एक बॉक्स जो होता है जैसे बंद होता है खुलता है, जैसे आपने मुंह को लिप कोई ले ले कि दो लिप हैं, दो यानी कि आपके होंठ हैं दो, वो कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुले हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुले हैं। तो वो हिस्सा जो है जहाँ से हमारी आवाज आती है, वो हिस्सा ऐसे आप करें आ, ये हमजा में जज्म के साथ पा रही हूँ। तो आह आह ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइन की प्रैक्टिस मैं बाद में बताती हूँ। और हाँ, हमजा की पहले पहले आ है और फिर आ है। आ, तो इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो अन अमता, अन अमता है। ठीक है, अन अमता। तो ये इसमें दोनों ही आ जाते हैं, इस लफ्ज में हमजा भी आ जाता है और आइन भी आ जाता है। तो अगर आप अन अमता कह रहे हैं तो दो हमजा कह रहे होते हैं, जहां से आप निकाल रहे होते हैं उस आवाज को। अगर बहुत आसानी के साथ यानी कि मुंह को खोल भी नहीं रहे, जबर वाले हर्फ के लिए वैसे भी मुंह खुलता है, तो आइन के लिए जरा मुंह खोलना पड़ेगा आपको। तो फिर ये अदा होगा। ठीक है, हमजा और हा बहुत आसानी से अक्साई हल्क से अदा होते हैं। कहाँ से अदा होते हैं? जो मखरज नंबर क्या है हमारा? पहला है हमारा मखरज अलजौफ। अब हलक का जो हिस्सा है, हलक के 3 मखारिज हैं, जहाँ पे 3 जगह हैं जहाँ से 6 हरूफ निकलते हैं, 3 जोड़े हैं। तो ये एक-एक सेट में 2-2 हैं, हमजा और हा, आइन और हा और गैन और खा।
दोहराई क्यों जरूरी है? क्योंकि याद हो जाए। जितनी बार आप सुनते हैं, जितनी बार आप कहते हैं, उतनी बार उतनी जल्दी ही आपको याद हो जाता है। तो हल्का से हमजा हा एक मखरज, इसका मखरज नंबर 2 आइन और हा दरमियानी हिस्सा हल्का। अपनी जुबान में लें तो दरमियानी हिस्सा हल्का, वस्ते हल्का। मखरज नंबर 4 है गैन और खा, क्योंकि ये सारे मखारिज में से 4 है और वैसे ये हलक का तीसरा मखरज है। ठीक है, गैन और खा। हलक का ऊपरी हिस्सा जो है जहां से अदा होते हैं, थोड़ा सा गैन जैसे ना गरगरा हम करते हैं तो वहां पे आवाज आ रही होती है थोड़ी सी आपका आप कहते हैं ना गला दर्द कर रहा है तो वहां पे थोड़ी सी टिकली सी फीलिंग आती है, टिकल सा होता है, खराश सी, जैसे ना हम खारिश करते हैं तो खराश खराश महसूस होती है और फिर कफ आना शुरू हो जाती है। तो ये हलक का आखिरी हिस्सा जो है ना, गले का आखिरी हिस्सा, थ्रोट हम कहते हैं ना इंग्लिश में इसको, तो थ्रोट। तो इसको इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि ये अमाम इब्ने जजरी जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ये पोइम एक लिखी है, पूरी नज़म लिखी है तजवीद के साथ। तो ये आप देख सकते हैं उनके नज़म के जो अल्फाज हैं। अम, ये हल्का जहाँ से थोड़ी पीडीएफ में गड़बड़ हुई है, आगे पीछे पेज हो गए। तो फिर गैन और खा, आइन और हा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यही करेंगे। आज हम ज़्यादा नहीं, इनसे बढ़कर नहीं करेंगे क्योंकि इनकी आज हमने प्रैक्टिस करनी है। क्या देखना है आज हमने? सबसे पहला मखरज नंबर 1 अल जौफ, जिससे हरूफे मदिया 3 अदा होते हैं। इनको आपने पहचानना है, अपनी जो भी प्रैक्टिस हम करेंगे उसमें इनकी पहचान करनी है। दूसरा नंबर 2 पे आज हमने हरूफे हल्किया किए हैं। ये जब हम तनवीन और नून सुकून के इंशाल्लाह ताला रूल करेंगे, नून जज़्म वाला जब आता है और उसके बाद जब इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफे हल्किया में से कोई हर्फ आ जाए, तो वहां पे हम इन वो जो नून जज़्म वाला होता है उसकी आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। वो पूरा आवाज आनी चाहिए उस नून की। या फिर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश जो होती हैं जिनको तनवीन कहते हैं, वो जो है उनके उनका आखिरी जो ऑडिबल नून होता है, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वो आवाज में छुपा होता है, आवाज में आता है वो। तो वो जो नून है उसकी हिडन नून हम उसको भी कहते हैं और ऑडिबल नून इंग्लिश में कहते हैं। तो हिडन भी इंग्लिश में ही है। तो वो छुपा हुआ नून जो है जज़्म वाला, जैसे हम कहें बा दो जबर अलिफ बन, बा दो जबर बन, बन जो न है वो आवाज जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ बा जबर नून जज़्म बन, आवाज एक ही है दोनों की, ये एक ही आवाज के हैं। ठीक है, चाहे 2 ज़बरे 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाए, चाहे नून जज़्म वाला आपको ज़ाहिरन नजर आ जाए, तो क्या होगा, ये हरूफे हल्किया जो हैं ये इन सब के ऊपर जब भी पहले नून जज़्म वाला आया होगा, जहाँ तनवीन आई होगी, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश, उसको तनवीन कहते हैं। वह आज आप सुन लें उसकी, क्योंकि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखने की ज़रूरत है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यानी वो तनवीन को, लेकिन मैं बताने के लिए आपको कि कहाँ से, क्योंकि हम बच्चे तो है नहीं कि एक-एक बिल्कुल स्टेप लें। हम इंशाअल्लाह ताला जब हम बढ़ेंगे ना आगे तो जल्दी आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे आपने थोड़ा-सा किया होगा तो उस वक़्त जब हम तनवीन और नून सुकून के रूल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि ये कहाँ से निकलते थे, कहाँ किस आवाज़ से है, तो किस हर्फ से है, किस जगह से है। तो जी आपको जल्दी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आइन एंड हा, गैन एंड खा और हमज़ा हा, इन सब के लिए
जब हम नून सुकून जाज तनवीन देखेंगे नजर आ रही होगी और इन में से एक हर्फ होगा, इनमें से एक कोई भी हो सकता है, इन शे में से कोई भी हो सकता है, तीनों जोड़ों में से एक हर्फ होगा, दो भी हो सकते हैं, उससे आगे वो उसका रूल और होगा, लेकिन ये है कि हम सिर्फ देख रहे हैं उनके बाद आने वाला जो हर्फ होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, वो इन शे में से एक होगा, तो वहां पे आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई देगी। किसकी? वो जो हिडन नून है, छुपा हुआ नून, उसकी आवाज अन 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 अन। मैं अब पढ़ रही हूँ बा दो जबर बन और बा जबर नून जज़म बन, ये आवाज बन बन दोनों की बन है, ठीक है। वो बन बन नून जो है आवाज निकालनी है, बन। अगर आप कहेंगे बन बन न इन द एंड, जो बन कहेंगे तो क्या होगा, ये बन कहने से आपने आवाज हिला दी, ठीक है। वो उसको जो नून आखिरी है उसको मखरज से बाहर कर दिया, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गौर से सुने इस बात को, जब ये हिल गया ना, नून हिल गया आपका, बन बन क्यों हिला है, मैंने आपको दिखाया था उसका मखरज के वहां पे ही नून जज़म के लिए वहां पे ही रहना है, आपकी जुबान उसके मखरज पर लगी रहेगी। जब आप कहें बन कहें तो कहाँ रुकती है आवाज, वहां पे रोक के रखें, ऊपर वाले दो दांतों के पीछे, है ना, उनके गम एरिया पर, वहां पे रुकती है जाके, बन बन कह के देखें तो आपको पता चल जाएगा। अन अन अब मैं हमजा के साथ कर रही हूँ, अन आह 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 आह, जी हाँ है, ठीक है। आग आग आह आह, ये हमारी प्रैक्टिस इस तरह होगी इनकी, जब जज्म के साथ होंगे, तो जब ये जबर के साथ होंगे तो फिर पहचानने में तो आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मखरज का आप लोगों ने देखना है कि आपका मखरज ठीक है कि नहीं। इंशाल्लाह ताला अब हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अभी मैंने आपका माइक खोलना है, हर बहन नहीं बोलेगी, नहीं खोलेगी, मैं जिसको आवाज दूंगी वो बहन अपना अनम्यूट करेगी और मुझे बताएगी कि समझ आ गई है बहुत जल्दी, और मैं इसको अभी बंद करती हूँ और कुरान खोलती हूँ, ठीक है। ये इधर है और कुरान आपका खुल गया, अगर उधर जाना होगा तो मैं आपको वापस ले जाऊंगी। हमारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया है, तो इससे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो आखिरी सूरा है उससे। अब सबसे ऊपर है शहनाज बहन बाहर थी, ठीक है। फिरदौस बहन, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, और ये है कि ये आपके सामने सूरत अन्नास है, तो इसमें से आप हरूफे हल्किया को तलाश करेंगे, ठीक है। और मुझे बताएं प्लीज, अपने आप को अनम्यूट जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो जाएगा। मुझे आपकी थोड़ी सी आवाज आ नहीं सकी बीच में, आप दोबारा से प्लीज बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैंने ये कहा कि आप हरूफे हल्किया की पहचान करेंगे, सूरतन नास पढ़ें और इसमें से हरूफे हल्किया की ना भी पढ़ें, लेकिन मुझे हरूफे हल्किया बता दें कहाँ कहाँ है। जो ये अभी अभी शे हमने पढ़े ना हरूफ, और इनके जोड़े 3 थे, है ना, जी, इनमें से अगर आप पहचान सकते हैं कि कहाँ है तो वो मुझे बताएं जल्दी से। आइन पहचान दी आइन आइन, में हुरूफ हल्किया है। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, और हमजा कौन और आइन, हमजा और आइन दोनों हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। और इसमें भी हमजा है और हा है, हाँ है, ठीक है। और ये दोनों एक जगह से हैं कि नहीं, ये भी मुझे बताएं कहाँ से है? इनका घर एक है दोनों का, के अलग अलग घर से है? उन 3 मखारज हमजा में से, है हा ना? तो एक ही जगह से है। एक ही जहां से, क्या नाम है उस जगह का? हमजा हा जगह का नाम? हुरूफ हल्किया है, हमजा हा
आइन हा गैन खा। हाँ जी, अब जो हरूफ हरकिया तो ये एक ही इनकी है, क्या है उस जगह को क्या कहते हैं? हलक का कौन सा किनारा है वो? हाँ, और उसका हलक दूर का वाला किनारा, दूर वाला अक्सा हल्क है ना? अक्सर हल्क है दूर जी। वाला किनारा, हलक का दूर वाला किनारा, ये आपने पहचान का ली है ना? जी जी। अब इसको मुझे बताएं, जहां पे है, क्या ये दोनों एक जगह से ही हैं तो हल्किया ही, लेकिन क्या जो दोनों एक जगह से हैं और जा नेबर हैं, यानी कि एक दूसरे के मेरे हमसाए हैं? ख्याल में आइन जो है वो दरमियान वाले हलक के दरमियानी हिस्से से है, तो उसको हम कहते हैं हलक का दरमियानी हिस्सा या वस्तुल हल्क। ठीक है, वस्तुल हल्क। तो ये एक दूसरे के हमसाए हैं, लेकिन जी एक घर में नहीं रह रहे। ठीक है, जी जी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आगे नशीन बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आप बंद कर लें, आप जो बहन अपनी बारी ले ले वो अपने आप को बंद कर ले, ताकि टाइम हमारा जाया ना हो। नशीन बहन जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी जी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लाइन है, इसमें से हरूफ हल्किया पहचाने प्लीज जल्दी जल्दी, और उनकी जगह बताएं और उनका, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस है इंशाल्लाह। जी जी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इस पे तो एक भी नहीं है। और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इस पे भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं, जब आपको नजर आ जाए मिन फिर मुझे बताएं। मिनल जिन्नति वन नास, और इसमें भी नहीं है। ओके, अब आप ऊपर आ जाएं फिर। ठीक है, जी आप जी। मुझे ये बताएं कि इसमें से हरूफ जौफिया कौन से हैं? हरूफ मदिया, ये पहली दो लें, इनमें से बताएं कि हरूफ मदिया आप पहचाने फिर, क्योंकि वो भी साथ साथ ही ठीक इसकी है। प्रैक्टिस होगी। एक इसमें है हुर्फे, इसमें है वाउ मद्दा है, आइन वाउ पेश ऊ, ऊ, ये है वाउ मद्दा। ऊ, आऊदु। जी आऊद, एक हो गया। जी। जी, और एक हो गया नून अलिफ जबर ना। ठीक है, रबिन, ये अलिफ मत दिया हो गया। ठीक ठीक है, है, दो हो गए माशाल्लाह। साथ में। हाँ जी, और मलिकिन नासी, नून अलिफ जबर, ये अलिफ मत दिया हो गया। और इलाहिन ना, इसमें भी अलिफ मत दिया हो गया, नास। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी। इनकी प्रैक्टिस से एक दूसरे को पढ़ाना ज़रूर है, किसी को लें और उनको बताना शुरू कर दें अपनी प्रैक्टिस के लिए। हम जब करेंगे तो दूसरे को भी पता चलेगा और हमें भी। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। माशाल्लाह आप बहुत लायक स्टूडेंट हैं और बहुत माशाल्लाह जानने वाले हैं। सिर्फ दोहराई है हम सब की, मेरी भी और आप सब की भी। और कौन बहन है? जहाँ पे हुस्ना बहन है। हुस्ना बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जिनकी बारी आती जाती है वो अपने आप को म्यूट करते जाएं जल्दी जल्दी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इंशाल्लाह ताला आप मुझे ये दूसरी लाइन जो है, इसमें से हरूफे मदिया की पहचान करें, और अगर कोई हरूफे हल्किया भी आता है तो उसका भी मुझे बता दें। ठीक है, ये जो लाइन है ना। जी, इसमें है मिन शर्रि वसवासिल, अलिफ मत दिया, और लास्ट में अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर, या मत दिया होगा जी, या अम, जी। या मदिया है। ठीक है, जहां पे आपका अलिफ मदिया आपने जे कहा है ना, जी जे कहा, और वाव मदिया आपने जे कहा, जाय मदिया जे कहा। या ठीक मत है, जाय जी। मदिया है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें से हरूफे हल्किया कोई है इनमें से, जो से आपने देखा है हल्किया उसी में से? हाँ, नहीं हो जी। नहीं है। ठीक है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास में आप देखें, आपने इसको देखें, कुछ है जहाँ पे कोई जो हम हाँ पढ़ मत चुके हैं उनको पहचानना है आपने, कोई भी इसमें जी, से हो या सकता है। दिया है जी। या मदिया घेन आ अल्लज़ी गई। ठीक है, इंशाल्लाह। अब आप मुझे जहाँ पे बताएं कि जहाँ पे क्या हो रहा है। सुदूरिन नास में वाव मत दिया वाव मदिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। बहुत तो जहाँ पे क्या है? अलिफ मत दिया है, नून अलिफ पर अलिफ है मदिया है, अलिफ मदिया है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। मजीदा बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी बाजी। जल्दी से। अब इसको देखें, आप इस सूरह को पढ़े, इतनी आयात 3 पढ़े और उसमें से मैं फिर देखती हूँ बहनों को पता चलता है कि कोई गलती है तो वो अपने पास, मतलब अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगी आप, लेकिन आप सबको पता चल जाएगा कि अगर इन्होंने कोई गलती की है कि नहीं। तो आपका टेस्ट है। ठीक है। आऊज़ बिल्लाह, सॉरी बाजी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मैं बिस्मिल्लाह। आपकी ना खारिज की या कोई और मैं गलती नहीं निकाल रही, मैं बस आपको अच्छा अभी नहीं अच्छा बताऊंगी बाकी चीजें, इल्ला ये कि आपने इतनी बड़ी गलती की हो कि अच्छा उसको आगे ना बढ़ सकूं मैं। ठीक है, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी मेरा गला खराब है। फिर कुल आप आऊज़ रहने दें, फिर कुल आप पढ़ना रहने दें, मैं किसी और से पढ़ाती हूँ। आप मुझे ये बता दें कि आपको समझ आ हाँ जी गई है हरूफ मदिया हाँ जी पहली जी 3? बाजी, हाँ जी बाजी। आ, सॉरी बाजी, मेरा गला बहुत खराब है। आप रहने दें, फिर अल्लाह ताला आपको बाजी शिफाए और कुछ कुल्ली का। अगर आपने पूछना हो रूबी मदिया के बारे में, जब कुछ वो मैं बता सकती हूँ। तो ठीक है, बता दें जल्दी से। रूबी मदिया वो वाव है, इसमें ठीक अलिफ है। है और मालिक नासी लाहिना हसी, इसमें वो हरूफ हल्किया है। हाँ ख्याल किया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको शिफाए कुल्ली कामला व आजिला अता फरमाए और जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। आपने फिर भी कोशिश की है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपको नहीं मैंने बाजी कोई चुना बात नहीं, जबकि आप ठीक नहीं थे। खालिदा बहन, जी। मैं आपको ना ऊपर वाली अब नहीं, आप पढ़ दें, इसको पढ़ दें बल्कि पूरी सूरत को सुनना है। नहीं, ऐसा करें कि 3 आयत तक पढ़ दें। अच्छा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, टाइम दे, मलिकिन टाइम दे। नास। अच्छा, बाकी में इंशाल्लाह बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त आप इसको टाइम देंगे, ठीक है? इसको टाइम दें। किस तरह? जब शद आएगी तो उसके लिए गुन्ना जो है लंबा होता है, ठीक है? मैं समझ। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बिन नास, बिन नास, बिन जब कहेंगे ना, और पहले तो रब्बिन नास, तो इसमें टाइम देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। चलिए, ठीक है, इसमें कोई है हरूफ हल्किया जो अभी आपने आयत पढ़ी? इसमें तो क्या कहते हैं, हरूफ हल्किया आइन है इसमें। आइन है, माशाल्लाह। कोई और मद हरूफ मदिया है कोई? नहीं, इसमें अब नहीं है कोई और। नहीं है, ठीक है। आइन है आप और इलाही हरूफ नास में मदिया हाँ की है। मैं बात कर हरूफ मदिया की मैं बात कर रही हूँ अच्छा क्या, अच्छा, हाँ वो जहाँ पे नास, नास है। नास में अलिफ जो है वो है अलिफ हरूफ, मद्दा जो है। ठीक है, जहाँ पे कोई है, किस पर? जहाँ पे ये देखे, जहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ। नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आऊज़ु में है कोई हरूफ ये मदिया? आइन है ना, उसमें अलिफ हमजा है। हरूफ मदिया आइन है ना इसमें, वाव है इसमें, वाव। वाव मदिया है। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। इस तरह न, यानी कि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है सब कुछ, लेकिन ये है कि इसको जब हम गौर फिक्र से करते हैं ना, फिर हमें जी पता जी। चलता है कि गौर फिक्र क्या चीज है, क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं, एक आदत बनी हुई है, आदत ही है ना हमारी, ये आदतन कर ली है हमने, आदत कर ली है, इबादत से आदत कर ली है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ये आप ये परवीन बहन का हाथ खड़ा है, आप जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, आपने ये पढ़ा है और बताया है मुझे। पूरी सूरत आप करेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। परवीन बहन आप पढ़ें प्लीज, अगली 2 आयत पूरी तिलावत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान, लाए उस हा को जो आज ही जी जी, हमने किया है, ठीक है? असल में गला थोड़ा खराब जी। आऊज़ु आप अल्लाह बिल्लाहि ताला मिनश शिफा दे। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकिन नास,
इलाहिन्नास मालिकिन नास है, मालिकिन मालिकिन, मालिकिन नहीं माँ को खींचे नहीं, अलिफ डाल रहे नहीं हैं नहीं हाँ आप। मालिकिन्नास अभी भी है, इला अभी माँ कहे, पहले मालिक माँ पहले माँ की प्रैक्टिस करें, मालिक जी माली, माली, अब मलिकिन करें माली माली माली। मलिकिन्नास इन्नास, इलाहिन्नास ये जो है ना गुन्ना, ये ग्रेटेस्ट गुन्ना है जो सूरह नास जो है, जितने इसमें गुन्ना ही ज्यादा है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है गुन्ना की। इसको कहते हैं अकमल गुन्ना, अकमल गुन्ना के दर्जे पर पढ़े इसको। माशाल्लाह मैं आपसे इसलिए पढ़वा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, तो आप इसको अब कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस में हम इंशाल्लाह लाएंगे। मालिकिन नास, मालिकिन्नास नास, सीन इलाहिन्नास मिन सीन नहीं, शर्रिल वसवासिल खन्नास। वो किसी और से पढ़ाती हूँ, जज़ाकिल्लाह अच्छा खैरन। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जी इलाहिन नास, आप जी मेरी सीन को सुन रहे हैं, आवाज को जी जी गौर, इलाहिन हम्म, नास, जी ये सीन की आवाज ऐसे आनी चाहिए बाद में, ठीक है? जी जी ठीक है इंशाल्लाह। अब आई नहीं आप थी क्या? मैंने पढ़ा जी? तो आई नहीं है मिला इलाहिन्नास। नहीं नहीं वो नहीं है, हाँ सीन की आवाज जो है ना आपकी, हम्म, वो सीन की क्लियर नहीं है, ठीक है? अच्छा क्योंकि सही सीन की आवाज इंशाल्लाह हम सिफात में पढ़ेंगे। हमने पीछे पढ़ा कल या परसों ही के हर हर्फ जो है वो अपने साथ वो निकलता है मखरज से, अपने घर से निकलता है, सही लेकिन वो किसी हालत में होता है, कोई उसकी कैफियत होती है, किस हालत में वो निकल रहा है। इसकी हालत क्या है, ये जज्म की हालत में, ओह एक मिनट मैंने अपने तो ये किस हालत में निकल रहा था कि इसकी जज्म है इसके ऊपर, ठीक है? और ये इसकी आवाज में सीटी पाई जाती है, वो इंशाल्लाह जब इसके मखरज पे आएंगे तो हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह जी आपके लिए एक्स्ट्रा बूस्ट था, ठीक है? जी जी ठीक है इंशाल्लाह। आपको इन सब की पहचान है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं कि वाव बताएंगे तो मद्दा बेहतर जी होगा, आपका जी हिस्सा जी डल जाएगा। कुल जी कुल कह दीजिए ये हुर्फ खल्क़ी है कुल। और क्या कहते हैं आऊ जो ये हमजा है हमजा जो है हुर्फ वस्त यानी नीचे निचले से यानी अक्सा से निकलता है। और अक्स आइन जो है वो वस्त से निकलता है। और वाव मद्दा है यानी इसके ऊपर वाव के ऊपर जज़म है। उसके बाद बिरब्बिन्नास जो है ये तो दूसरे हम सिर्फ जी जज्म ही जी देखेंगे कि कुछ और भी देखेंगे? जी उसके बाद वाव के ऊपर जो है ना जज़म उससे पहले पेश है। पेश को जरूर देखा जाएगा सबसे पहले, फिर हम ये भी देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल वाव जो है हमेशा पेश ही लेता है और ये जी जज़म इसके ऊपर तो ये हमें इससे पता चलता है कि वाव मद्दा है ये। ठीक है, उसके आगे बाद इंशाल्लाह। नास में जो है वो अलिफ मद्दा है ये उसके ऊपर अलिफ जो है वो जबर लेता है। और उसके बाद मलिकिन नास अलिफ में जबर लेता है, अलिफ नहीं अलिफ से पहले जबर आता है ये पहले ना जबर नून के आती है, ऊपर ठीक जबर है। है ना ये तो नून अलिफ के मद्दा बन गया ये। हाँ जी, जी अलिफ अपने पहले जबर लेता है, अलिफ जी मदिया अपने पहले जबर लेता है, ठीक है? पहले लेता है यस नून के ठीक ऊपर है है ना ये जबर। जी, तो ठीक ये है अलिफ जो इंशाल्लाह। है अपने जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको करें इंशाल्लाह। जी उसके बाद मलिकिन नास तो ये जो है यहाँ पे भी जो है अलिफ अपने पहले नून के ऊपर जबर ले रहा है तो ये भी अलिफ मद्दा है और मदिया है। और उसके बाद इलाही नास ये हुरूफ हल्की में से आ रहे हैं। हा और आ और हा ये दोनों जो है हुरूफ अक्सा से यानी मखरज है दोनों और ये निकलते हैं वहां से ये देखें, ये हल्के से ये हल्क से अक्सा से आपने इधर देखें, इला, जी ला में क्या है? ला में जो है ये दो अलिफ हैं चुपे हुए तो जो हम इसको खींचते हैं
اور کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ حروف مدیہ ہے یہ جے مدیہ کے قائم مقام ہے جے جی جی یہ قائم مقام قائم ہے، مقام بالکل ہے، اس کے قائم بالکل مقام ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ آپ سے میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ کو الحمدللہ پتا ہے تاکہ دوسری بہنوں کو بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے، الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ اس میں بھی الف ہے، یہ جی بھی حروف مدیہ کے قائم مقام ہوگا، بالکل یہ الف جی بالکل یہ حروف مدیہ میں ہی آتا ہے، کیونکہ یہ 2 الف کے برابر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی حروف جی یہ جو ہے الف مدہ ہی میں آتا ہے۔ سامنے نظر نہیں آ رہا ہمیں الف، لیکن انہیں عربی میں کہتے ہیں الف صغیرہ، الف جی صغیرہ، ٹھیک ہے، چھوٹا الف، الف صغیر تو ایک شارٹ ہوتا جی ہے، آدھا لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں جی پڑھنا ہوتا ہے اس کو، یہ تو بھی ایلا مدی میں پھر آتا ہے ہم جی اس کو کھینچ دیتے ہیں، لیکن اس وقت ہم پریکٹس ان تینوں کی کر رہے ہیں، ہر 3 حروف مدیہ، تو جی ان میں یہ جو الہ ہے اس میں الف چھپا ہوا ہے، مدیہ کے قائم مقام ہے، لیکن اس وقت ہم اسے حروف مدہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، جی یہ حروف بالکل مدہ میں سے نہیں ہے، لیکن جی اسے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، قائم مقام ہوتا ہے جی، قائم اور یہ مقام ہے، الناس میں بھی جو ہے یہ الف مدہ آ گیا، مدیہ آ گیا، اس کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے، تو جزاک یہ اللہ خیرن کثیرہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور بھی اب ہم دیکھتے ہیں اور کون بہنیں ہیں جہاں پہ گل عمران بہن ہیں، آپ یہ جہاں پہ پڑھیں گے، جہاں سے تیسری جو ہے، تو اس میں جو ہے وہ بتا دیں آپ مجھے، جی جی ایک منٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تھوڑی سی جو تشدید ہے نا آپ کی شد، اس کے اوپر اور ایمفیسائز کریں اور سختی کریں، ٹھیک ہے، اچھا یہ شد جو ہے نا، من شر الخناس، خن جیسے ہارڈ ہٹ نہیں کرتے ہم، لکڑی کے اوپر کلہاڑا مارتے ہیں، ہے نا، اچھا اگر تو ہم کلہاڑا بہت آسانی کے ساتھ رکھ دے، ویسے اوپر رکھ دے تو آواز آئے گی کچھ، ہماری نہیں، محنت درکار ہوگی، ہمیں ہاں نہیں ہوگی نا محنت، لیکن اگر ہم زور سے ماریں گے تو لکڑی کب کٹتی ہے، رکھنے ہاں سے اس کے اوپر مارنے سے، ٹھیک ہے، زور سے مارنا ہے، ٹھیک ہے، من شر کیونکہ پہلی جو جزم والی راہ ہے اس میں چھپی ہوئی، اس کو شر ہے، ٹھیک ہے، شر اگر آپ بہت آسانی کے ساتھ شر کر جائیں گے تو وہ جو ہے وہ اس کا حسن چلا جائے گا، تشدید کا، اس میں سے جزم والی یا جو ہے وہ تھوڑی سی غائب ہوتی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، اب آپ پڑھیں دوبارہ، ٹھیک ہے، من شر الوسواس الخناس، وس اس سین کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب جزم کے ساتھ آئے گی تو اس کی آواز سنا کریں، وس واسل واسل، آپ پڑھیں، وسواسل، ہاں جی، ٹھیک ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسو نو سو نہیں ہے، کیونکہ واو آپ نے لگا دی ہے اس کے آگے جزم والی جو نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں اس کو، اس حرف کو، اس لفظ کو، یوسوس، یو وس، اس سین کو پہلے لائے، یو وس ویسو، وسو، ہاں جی، سو نہیں کریں گے، اگر سو کر دیا تو واو جزم والی آٹومیٹکلی ایڈ ہو گئی، جو کہ حروف مدیہ بنا دیا آپ نے، اس سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک، فی سودو، اب کریں، اب دوسرا پڑھے آخری دوبارہ، فی صدور الناس، رناس، اکمل گنہ کرے، اکمل، اس کے اوپر اکمل گنہ ہوتا ہے، صدور الناس، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے مجھے بتایا نہیں کچھ، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کوئی مدیہ لیٹر بتا دیں، ایک ہی مدیہ لیٹر بتا دیں، اور کوئی میں بات، حروف حلقیہ میں سے بتا دیں، ان میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے،
ٹھیک ہے. فی جو ہے وہ بھی یا مدیہ بنے گا کیونکہ یا جزم ہے اور اس سے پہلے فا پر زیر ہے. اور صدوری بھی جو ہے وہ دال واو پیش جو ہے یہ بھی جو ہے واو مدیہ بنے گا. اور جزاک اللہ خیرن. ناس آپ کے میں پاس کوئی ہے حل کیا؟ حل کیا ایک منٹ الذی یوسوس یہاں پر من شرل جو ہے نہیں یہ بھی ہلکی تو نہیں ہے. حل کیا نہیں ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہی ہم نے پہچان کرنی ہے نا کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ غور و فکر بھی کرتے ہیں لیکن اب ہم نے اور کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ساری بہنوں کی باری شاید نہ آ سکے کیونکہ ہر روز ہم اس کی پریکٹس اب کریں گے کیونکہ اب ہم حروف کے اوپر آ گئے ہیں. 2 دن ایک ہم چیز جی ایک چیز میں پوچھ رہی ہوں خناس میں تو یہ حروف حلقی ہے نا خا. ہاں جی جزاک اللہ جی خیرن کثیرہ. میں کیونکہ وہ بھی آیت انہوں نے پڑھی تھی مجھے یاد بھول گیا کہ وہ آیت انہوں نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی میں اس آیت کا ہی دیکھ رہی تھی کہ جی انہوں نے پڑھی. ٹھیک ہے. ہاں جی گول عمران بہن جی خا جو جزاک اللہ خیرن کثیرہ بہن آپ نے اس کو نوٹ کیا تو یہ جی خواب جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے. اور گول عمران بہن اس کو بتائیں کہ کہاں سے یہ ادا ہوتی ہے خواہ. یہ جو ہے وسط الحلق سے ادا ہوتی ہے. جی خواہ ہم اب اپنے گلے کے اوپر ہاتھ رکھیں بالکل نیچے جو گلے کا آخر ہے اس میں جائے اس سے مجھے بتائیں کہ کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. بالکل نیچے سے جو اکثر حلق ہوتے ہیں اس سے حمزہ اور 2 چشمی ہا ادا ہوتے 2 ہیں. چشمی ہاں تو اس سے اوپر آ جائیں. اس سے اوپر آئیں گے تو درمیانی حلق ہوگا تو غین اور خا یوز ہوگا. نہیں جہاں پہ آپ کی تھوڑی سی گڑبڑ ہے. غین اور خا جو ہیں یہ سب سے اوپر آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے آخری حصہ حلق کا. عین اور ہا بیچ والا عین اور ہا. ہاں ٹھیک ہے. عین اور ہا درمیانی حصہ ہے. تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی کوئی بات نہیں الحمدللہ انشاءاللہ کیونکہ جب بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی نہیں اللہ نہیں اور سبحانہ. وہ میرے ذہن میں وہ اوپر رہ گئے تھے عین ہا ٹھیک ہے پہلے رہ گئے تھے تو میں ہاں دوبارہ جی یاد کروں گی. ہاں جی انشاءاللہ یہی ہم نے دیکھنا ہے. ہم سب کو پتا ہے الحمدللہ لیکن اب ہم نے پریکٹس میں لانا ہے جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب جن بہنوں کی باری نہیں آئی ان میں سے میں دیکھتی ہوں کون ہے. نازیہ بہن ہے. نازیہ بہن آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور میں آپ کے لیے جی جہاں پہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ آخری جو ہے نا 2 آیات اس کو پڑھیں پلیز. الذی سے پڑھنا باجی. الذی ہاں جی ہاں الذی یوسوس فی صدور اس کو لائیں. الناس. الذی یوسوس یوسوس الذی یوسوس فی صدور الناس تو ٹھیک ہے میرا خیال من آپ کے تھوڑی الجنۃ والناس. ٹھیک ہے جی آپ کی سین بھی جا تو مجھے جی سنائی باجی نہیں نیٹ ورک دے رہی پرابلم. لوگوں کی تو جا پھر یہ ہے کہ آپ کی سین میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آ رہی اور سین تھوڑی سی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے سنائی دے رہی ہے. تو یہ اب میں پڑھتی ہوں اس کو. الذی یوسوس فی صاد میں بھی سیٹی ہوگی. فی صدور الناس یہ آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے جو یہ دوبارہ پڑھے آخری جو آیت ہے. بہن چلی گئی تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں. سوری من الجنۃ والناس.
ٹھیک ہے الحمدللہ. سین کا ہی تھا مینل جن جن، جہاں پہ بھی اکمل گنا ہوگا گنا پورا کیا جائے گا، بلکہ پورے سے جن اوپر ہوتا ہے، کامل پورا ہوتا ہے، یہ پورے سے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، مینل جنتی آپ جلدی سے کہیں گے تو وہ ایکسٹرا ٹائم نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، گننے کا ٹائم جو ہے اکمل وہ نہیں، کیونکہ اس میں گننا ہے نا، نون مشدد میں تو مست بھی ہوتا ہے نا. من الجنتی جنتی والناس یہ آواز آئے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں کچھ حروف مدہ کوئی ہے جا کے جی بار بار آپ بہن بتا رہے ہیں الحمدللہ. جی الذی میں یا مدیہ ہے اور فی میں بھی یا مدیہ ہے اور ناس میں الف مدیہ ہے اور یہاں پہ من الجنتی والناس میں بھی الف مدیہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہاں واو مدیہ ہے یہاں پر. واو مدیہ ہے. سو جب آپ مدیہ جو بھی بہن بتائے نا، جب آپ مدیہ بتائیں سو سے اس کا پورا اصول بتائیں اب. ٹھیک ہے، واو مدیہ ہے کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا. جزاک جی اللہ خیر. واو جزم سے پہلے پیش. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. نشین بہن آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ پلیز انمیوٹ کریں. جی آپ بتائیں، مجھے کچھ بات بتانا چاہتے ہیں؟ کچھ غلطی میں نے کر دی؟ نہیں، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں یہ، تاکہ آپ مجھے تھوڑا وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھیں پلیز. بسم اب اللہ ایسا ہے کہ آپ ساری صورت اگر کر سکتے ہیں نا جلدی سے تو وہ کر دیں انشاءاللہ. جلدی سے مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹائم ضائع نہیں کرنا. جی جی جزاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ قاف موٹا اور برب کریں، قاف اور موٹا قل کریں. قل قل. پڑھیں ٹھیک ہے پڑھیں. ہاں جی پڑھتے جائیں، جب غلطی ہوگی تو میں وہاں پہ روکوں گی آپ کو. جی آپ مجھے روکیے گا. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس بیرب را موٹا رکھیں، بی اور موٹا کیونکہ آپ کا تھوڑا سا ہلکا سا موٹا ہوا ہے. را موٹا جہاں پہ ہے. بیرب الناس برب الناس ملک الناس الہ الناس. اچھا یہ سین کی شاید آواز ہے نا، شاید مائک کی وجہ سے مجھے سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ سین کی آواز پیچھے سے غائب ہے لوگوں کی ہو رہی. اچھا میری آ رہی ہے الہ الناس. اب آئی ہے تھوڑی سی، اس کا مطلب ہے آپ نکال نہیں رہے تھے آواز. اب دوبارہ نکالیں اس کو، آگے والے جو ہے آگے پڑھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یوں ہی ہوگی نا، بالکل لائٹ سیٹی ہوگی نا اس کی. سیٹی آئے گی تو اس کی صفات میں سے ہے. یہ صفات انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ رن ہوتی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم جب تلاوت کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کو بالکل ہی وہاں پہ تھوڑا سا بچوں کی طرح رکھوں. میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. من شر الوسواس الخناس جس کی آواز اور لائن اب کر خناس. خناس خواہ موٹا بھی رہے گا نا، خواہ 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 خناس. خناس. اوکے آگے. الذي يوسوس في صدور الناس. تھوڑی سی اپنی پیش کے لیے جو ہونٹ ہے اور گول کر لیں. کس میں؟ پیش کے لیے اور دو کے لیے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی اور گول کر لیں کیونکہ آپ کے گول ہیں لیکن اتنے گول نہیں ہیں گلائی میں. الذي يوسوس في صدور الناس.
सुदू, माशाल्लाह। दू पे करो ना, दू, फी सू स्वाद मोटा भी रहेगा, इसको मोटा करें। फी सू, सूदू, सूदू। सुदूरिन्नास, हम्म। सुदू, सुदू। अब दाल तो अच्छा, मोटा साथ तो में नहीं। सौत, हाँ सौत पे भी हमारा पेश है, इसमें पेश में साउंड में हमारे होंठ हर पेश साउंड में गोल होंगे या सिर्फ हर वाव पेश में मदिया पे गोल होंगे? होंगे जब वाओ आएगी। नहीं, वाओ जब भी हम कहते हैं ना, जैसे हर्फ वाओ भी कहते हैं, वाओ वाओ, हम जी, वाह नहीं वाव। कहते मुंह खोल के, वाह नहीं ये है, ठीक है, जो हम उर्दू में वाह हम्म, वाह कहते थे, वाह ये नहीं है अरबी में, वाओ है, वाओ। पहले वाह से शुरू वाव, होता है, फिर होंठ गोल होते हैं, वाह खुलता है, वाओ वाओ। जैसे हम अगर इंग्लिश में आप कभी वाव। सुना हो, हम किसी चीज को हमें अच्छी लगती है, हम कहते हैं वाओ, है ना, वो थोड़ा सा और जी, एम्फेसाइज करते हैं, वाओ मतलब भाई बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, जिसको हम कहते हैं ना वाओ, जो इंग्लिश के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो जी, बहुत अच्छा उस पे आता है, वाओ वाओ। हम बहुत वाओ वो तो कहते हैं ना, वाओ यानी कि और एम्फेसाइज करते हैं कि बहुत अच्छी है, अमेजिंग है, लेकिन हम कहते हैं वाओ वाओ, ठीक है, आसानी के साथ। तो वाव। ये वाओ, जी, ये हर्फ वाओ है, जो हमने मखारज में वाव। थोड़ा सा मैंने किया था, इंशाल्लाह और करेंगे, जहां से इसका असल जी, मखरज उसमें होगा। और होठों का बिल्कुल गोल था आपकी पिक्चर में, बिल्कुल गोल राउंड आ रहा था ना, बहुत प्यारा बिल्कुल सा, गोला, बिल्कुल वो गोल रहा था नहीं जी। आया, वो नहीं आपका आया ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उन पिक्चर्स को अगर आप सब अपने जहन में उतार लेंगे ना, उन पिक्चर्स को, तो आपको जी, जब भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। जब इंशाल्लाह हम सिफात भी पढ़ लेंगे, उस पिक्चर के साथ ही आपने सिफात को रखना है, उसके साथ ही मखारिज को रखना है। फिर हमने देखना है कि अब इसके ऊपर हरकत है, सुकून है, शद्दा है, क्या है, क्योंकि शद्दा के साथ हरकत भी तो होती है ना, वो भी होगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपने अब पूरा कर दे इसको प्लीज। जी। फी सुदूरिन्नास। अब मैंने सौत पे भी होठों को गोल लाई हूँ और वाव पे भी कोशिश करी, सू, सू, हाँ जी, सू, सू। तो वाव इसकी और जब आप होंठ। प्रैक्टिस ठीक करेंगे है ना, ऐसा करें जी। कि जे ना मिरर के आगे, शीशे के आगे खड़े हूँ, बैठे, ठीक है, हम्म। सब बहनें, और फिर इस पेश की और वाओ की प्रैक्टिस करें। जब कोई भी हर्फ हो तो आपको वो हर्फ जो आपके लिप्स से, जो आपके होंठों से अदा हो रहे होते हैं ना, उनके लिए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। आपको पता जी, जी, चल जाएगा आपके होंठ गोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। पेश के लिए ऊ ऊ ऊ ऊ बिल्कुल होंठ गोल, लेकिन जब आप सुदू कहेंगे तो इसके लिए प्रॉपर गोल होके आगे को आगे निकल आएंगे बाहर, दू दू, जी, जी, दू, ठीक है। दू। ये पूरा हाँ, आपको, बाहर की तरफ क्योंकि आ रहे हैं, ठीक है। बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, सुदू। तो ये आपने जी, जी, खूबसूरती लानी है इनमें अच्छी तरह इसकी, क्योंकि ये अगर सुदू सुदू, तो ये क्या हो रहा है, पेश के साथ मैंने कहा, बताया था पहले दिन ही, कि पेश के साथ हम जो जबर पढ़ रहे होते हैं, मजहूल हम कहते हैं ना, मजहूल पढ़ा जोहल से, मजहूल, तो वो जी, थोड़ी सी पेश पाठ, ज्यादा पेश पाठ रहे होते हैं, थोड़ा सा अलिफ साथ में मिला रहे होते हैं। अगर हम उर्दू में ले तो बड़ी जा को साथ में ले लिया, हम कहते हैं कमरे, तो जब बड़ी जा का मैंने बताया था कि आधा आधा अलिफ और आधी या होती है, ठीक है। तो ये हमें अरबी में पता चलता है कि वो आधा अलिफ और आधी या होती है। उर्दू में कभी नहीं किसी ने बताया कि आधी या और आधा अलिफ होता है, इसकी आवाज इसलिए ऐसे आती है, नहीं पता था ना हमें। फर्स्ट टाइम पता चला है जी। ये अरबी से पता चला है, मुझे भी अरबी पढ़ने से पता चला है। वो मजरे हा जब मैंने पढ़ा, उससे ओनली पता वन चला, वर्ड कुरान में। ये वन वर्ड है कुरान में, उससे मुझे पता ज्यादा प्रैक्टिकली पता चला कि वो आधा अलिफ और आधी या होती है, ठीक है। तो जी, इंशाल्लाह ताला जहां पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, जिन बहनों का रह गया है उनको इंशाल्लाह आप कल हाथ खड़ा करें, या मुझे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस हफ्ते की कल हमारी आखिरी क्लास होगी, फिर इंशाल्लाह मंडे से। तो ठीक।
अब सब बहनों से मैं नहीं सुन सकती, जिन बहनों से आज सुना है वो कल को जरा खामोशी इख्तियार करेंगी, और जिन बहनों से नहीं सुना उनको मैं फिर कोशिश करूंगी सुनने की। प्रवीण बहन, अगर आपने कुछ कहने के लिए, सजेशन के लिए हाथ खड़ा किया है तो वो जल्दी मुझे बता दें ताकि हम क्लास खत्म करें इंशाल्लाह। सिस्टर एक आयत रह गई, कर लूं? ओ अच्छा, मैंने सोचा आपने कर लिया है। कर ले जल्दी नहीं से। नहीं, सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। लाम को हलाए नहीं, लाम जज्म वाले को, फिर कोशिश करें। हाँ, मिनल 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 जिन्ना, क्योंकि लाम और मिनल नून जिन्न। दोनों बारीक भी हैं, अगर नल कर देंगे तो नून मोटा नहीं है, लाम मोटा नहीं है, नल नल लेकिन नल, मखरज में रहना है, ठीक है। ठीक है, किस तरह पढ़ूं उसको? मिनल मीनल मीनल लाम, वो अगर आप तस्वीर को उसको दोबारा जाके देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह वहां पे आपकी जुबान की नोक जो है वो लगी हुई तस्वीर आ रही है वहां पे, ठीक है। नून के साथ हल्का लाम को साउंड, मर्ज कर देंगे ना तो मिनल ठीक हो जाएगा। नून को लाम के साथ मिला लेंगे तो फिर वो मिलाना है, लेकिन ये है कि जब हम मुखारजुल मिलाना हरूफ नहीं में देखते हैं, एक मिनट, अगर मेरे पास वो खुली है तो मैं आपको दिखा दूं। सिस्टर इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? मेरे अल साउंड उस दिन भी मेरा सही नहीं आ रहा था। मिनल जिन्नति, इस तरह। जिन्नाती वन्नास, मैं अभी वो देख रही हूँ कि अगर मुझे वन्नास, तस्वीर आपके लिए नजर आ जाए तो मैं दोबारा उसको शेयर करके आपको दिखा दूं कि किस तरह वो गोल होता है। हूं तो आप मेरा ख्याल कल की क्लास अगर आप सुनेंगे ना तो उसमें शायद था, नहीं था आप मतलब वो रिकॉर्डिंग लिंक भी इसी ग्रुप में भेज रही जे हैं जे अभी सिस्टर? अभी मैंने आपको शुरू एक मिनट में ये शेयर कर देती हूँ, और ये बहुत है कंफ्यूजन वाला है कि इसको हम ठीक करें अभी, ठीक है। स्टॉप शेयर करके मैं हल्का अभी साउंड आ रहा है उसको इसमें। करती हूँ, ठीक है। मैं शेयर दोबारा करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा, नजर बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, इस तस्वीर की फोटोकॉपी अपने अपने जब भी निकालेंगे ना तो ले लें। और ये आप देखें क्या है जी, किधर जुबान है? जी जी, ये बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, दो दांतों के लगी बीच हुई है। ऊपर ये तो टंग ना। जब ये हाँ, छोड़ दी जाती है जुबान का, ये टिप ऑफ द टंग जो होती है, आगे का किनारा जो होता है, ये जब इसके मखरज से, जहां से परे हटा दिया जाता है गम एरिया से, इस गम से, तब आवाज आती है नल 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 नल। नल आवाज आती है, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा, हमने तो इसको क्या करना है? ये नल। इसको परे नहीं करना इस गम एरिया से, इसको ऐसे रहने देना है। जब आप मिरर में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, शीशे के आगे खड़े होके, तो देखना है कि आपकी अल नल कहते हुए या अन के लिए भी ये लगेगी, इस इधर ही रहेगी। तो लाम के लिए भी ये आम पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत आता है कुरान में और इसकी मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं फिर, ठीक है। तो जी मैं ये कुछ बोलूं? जी बोले। ये ना लाम जो है इसमें तवस्सुत रहता है, इसमें ये थोड़ी सी आवाज है चलती है इसकी, अल करके इस तरह अपनी जगह पे ठहर के, जिसे अल इस तरह करके आवाज आती है। जी जी हाँ जी, वो है ना, अभी मैंने सिफात पढ़ी नहीं है ना, बताई नहीं है ना इनको, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इनको शक्ल दिखा के बता रही हूँ कि क्या करना है ना। तो जहाँ पे जब आप शक्ल से इसकी किसे याद रख लेंगे ना, नल नल वहां पे, तो इसकी थोड़ी सी चलती है आवाज। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा बहन, कुछ आवाज इसकी चलती है और कुछ इसकी ठहरती है। तो अब मैं बहन ने बताया है तो मैं बता देती हूँ। इस ये तवसत से है, लिन उम्र में से है लाम, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा लग भी रहा है, वहां पे ठहर भी रहा है, और उसकी थोड़ी सी आवाज चल भी रही है, ठीक है। क्योंकि आवाज से है इसका, जब आप वहां पे रखते हैं तो फिर ये जहां पे ऐसी शक्ल फिर आएगी, ठीक है। ये जो मैं गोल दायरा कर रही हूँ, ये शक्ल हमें चाहिए जब ये जज्म की हालत में हो, ठीक है। सिस्टर लाम जैसे जब अब ये मिनल, इसमें हमारी, हाँ इसमें हमारी ये जो पूरा ऊपर के जो चार दांतों पे लग रही है ना मिनल, यूं बिल्कुल नल बिछा देनी है ये टंग को मिनल अपना।
मिनल ये देखिए कितने 2 4 6 8 दांत से लाम लगता है, ठीक है। लाम वाइडर रेंज कहा जाता है कि लाम का मखरज सबसे वाइडर है, यानी कि चौड़ाई में, ठीक है। ऐसे फैल के जुबान, क्योंकि लाम मोटा हर्फ नहीं है ना, लाम बारीक हर्फ है। नल तो जब आप फैला के लाते हैं ना, ये जुबान की ये हिस्सा जो है, अब हमारी क्लास फिर मैं लंबी हो गई है थोड़ी सी, इसको देखें जहां पे जब जे वाइड जी, जहां पे आप वाइड, जब आप थोड़ा सा इसको स्केड देंगे ना, स्केड देंगे जहां पे, तो वो जे 8 दांतों से नहीं लगेगा, ठीक है। नल मीनल जिन्नती, क्योंकि सारे स्माइली लेटर्स है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कहते हैं स्माइली लेटर है ये ना, स्माइली लेटर है ना। ये मुस्कुरा के जैसे पढ़े जाते हैं ना, मुस्कुराना, थोड़ा सा एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना। जो मुस्कुराहट है ना, वो जबड़े को नीचे करती है, नीचे वाले को, है ना। ऐसे आप अगर करके देखें, मीनल जिन, अगर आप करेंगे नल, तो वो फिर सिर्फ 4 दांतों से लगेगी, क्योंकि वो आपने थोड़ी सी ये टिप ऑफ द टंग जो है वो स्केड ली है, यानी थोड़ी सी इकट्ठी कर ली है। तो वो फिर ये देखे आपको पूरी तस्वीर नजर आ रही है, जहां पे पूरी तस्वीर है ना। तो कितने दांत हैं आप गिन ले। अब जे जो पीछे है, कई के 4 होती हैं, जे जो है, जे है ना, ये हाफातुल लिसान से लगती है। जे इसकी जे लाम की दाढ़ जो एक है ना, जे दाढ़ नहीं होती, दांत होता है। जे इस 4 के साथ 4 जे और 5वां जे आ जाता है दाद के लिए, ठीक है। तो जहां तक दाद आता है, जहां तक, ठीक है। तो जे फिर लाम का मखरज आगे आ जाता है। तो इससे कम करें तो नून का मखरज है जी। अब क्योंकि पिक्चर आ गई तो मैंने सोचा कि आपको बता ही दूं। तो अब बहुत अच्छा क्लियर हो गया जहन में, माशाल्लाह। ये जो है, ये जो 4 हैं, ये रा के मखरज में आएंगे। हो सकता है कि उधर मुझे याद भूल जाए बताने का। ये जो है, ये इधर का गम एरिया रा के लिए जहां पे जुबान लगती है, ये जुबान का हिस्सा, और ये जो लगा हुआ है, और साथ में पुष्ट थोड़ी सी, ये ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा सा लगता है, ठीक है। रा के लिए रा रा अर तो वो थोड़ा सा तकरार भी चलती है। इंशाल्लाह ताला जहां पे हम क्लास खत्म करते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जिसने पढ़ा है, अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो बहुत सब्र से सुन रही थी बहनें, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको डबल अजर दे उससे भी, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। क्योंकि सब्र का अजर डबल होता है ना, अजर ज्यादा होता है ना। उन्होंने सब्र किया है। इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे कल को, जहां पे हम खत्म करते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन। बिस सब्र, जहां पे आगे मुझे याद के रा अभी हम कर रहे थे, ठीक है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या दल जलाल वल इकराम या नूरुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा या रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या रब या रब या रब, हमारा जहाँ पे बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमा ले। जो गलतियां हुई वो मेरी तरफ से थी, वो हमारी एक इंसान होने के नाते मेरी थी। अल्लाह सुब्हाना ताला जी मुझे माफ फरमा दे। जो मैंने सही दिया उसको कबूल फरमा ले। और अल्लाह सुब्हाना ताला जितनी बहनें बैठी हैं इन सबको अच्छी तरह इनके ज़हनों में डाल दे अल्लाह, और इनको आगे देने वाला बना दे। क्योंकि उम्मते मुसलमान का हर फर्द दाई है।
हर आमीन फर्द दाई है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम आमीन सब के लिए आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह आमीन सुब्हाना ताला हमारी ज़हनों पे, ज़ुबानों पे इसको डाल दे, ज़हनों में उतार दे, ज़ुबानों में आमीन चढ़ा दे उस बात को। रब आमीन इश्रह ली बहुत बहुत पढ़ा करें। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब बहनों को इसके माहिरुल कुरान बना दे, यानी माहिर बना दे कुरान के। आमीन एक सुमा होता आमीन है कुरान का माहिर, है ना, कि जो ठीक पढ़ता है वो कुरान का जो माहिर है उसमें, वो उसको तो किरामिम बाराराह वो जो फरिश्ते इज्जत वाले हैं उनके साथ होगा मकाम उसका। और जो अटक अटक के पढ़ता है, वो कोशिश करता है और अटक अटक के पढ़ता है, वो जुबान पे नहीं चढ़ रहा, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है, उसको डबल अजर है, दोहरा सुभान अजर अल्लाह है। तो किसी को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने छोड़ा नहीं है। जो ऐसी महफ़िल में आ भी जाता है ना, सिर्फ़ जा देखने के लिए, जा टाइम है तो कोई बात नहीं 2 मिनट में जॉइन कर लेती हूँ, तो वो उसको भी अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं जाने देते। जी ऐसी बाबरकत महफ़िलें होती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना लिल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। फ़ी फ़लस्तीन व कुल्ली व मिन कुल्ली बिलाद। आमीन सुम्मा आमीन। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारे हाज़िर हैं, जो गायब हैं, मर्द और औरतें और बच्चे, और जो हमारे मुर्दा हैं, मर्द और औरतें और बच्चे, और जो हमारे ज़िंदा हैं, उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। और हम में से जो भी ज़िंदा रहे वो दीन इस्लाम पर ज़िंदा रहे, और हम में से जिसकी मौत वाक़या हो वो इस्लाम पर वाक़या हो, वो दीन पर वाक़या हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी वक़्त हमारी ज़ुबान पे जारी कर देना है अल्लाह। इसी कलमे के साथ हमारी मौत देना है ऐ अल्लाह। जिस वक़्त हमारा आखिरी वक़्त हो, वो हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन वक़्त हो, तेरी मुलाकात का वक़्त हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन वक़्त बना देना तू। ऐ अल्लाह, हमें जो हम जे एक-एक एक-एक सेकंड लगा रहे हैं ना तेरे इल्म को सीखने के लिए, तेरी कलाम पाक को अच्छी तरह पढ़ना सीखने के लिए, ऐ अल्लाह हमारे हक में ये हर चीज़ गवाही देने वाली बनाकर लिख देना। हर चीज़ जो-जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह सुब्हाना व तआला जो-जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने ये बनाया है वो मुसलमान हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको अजर अज़ीम अता फरमा। जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इस क्लास को लेने के लिए, जिन्होंने बनाया है और वो गैर मुस्लिम हैं, तो अल्लाह सुब्हाना तआला उनको हिदायत अता फरमा, अपने दीन से जोड़ दे। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे फ़लस्तीन बहन भाई जो हैं, वहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं उनकी मदद फरमा, बहन भाइयों की मदद फरमा। वहाँ पे जो मुहाजिर हैं, तकलीफ़ में हैं, दुःख में हैं, उनकी मदद फरमा। जो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तकलीफ़ें हैं तू दूर कर दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला तू उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे, आसानी वाली राह पैदा कर दे। अल्लाह तबारक तआला तू तो देने वाला है ना, तो तेरे तो दोनों हाथ हर वक़्त तेरी मुट्ठियाँ भरी हैं। ऐ अल्लाह कभी खाली नहीं हुई, उनको भी लौटा दे, उनको भी दे दे अल्लाह ताला, उनकी तकलीफ़ें दूर कर दे, उनका खौफ़ जो है वो दूर कर दे। ऐ अल्लाह सुब्हाना तआला उनका खौफ़ दूर करके उनको अमन की हालत में रहना इस दुनिया में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो चले गए हैं उनको आला मकाम इल्लियीन में देना, उनको आला मकाम जन्नत के दर्जों में जगह देना, जन्नतुल फ़िरदौस में। ऐ अल्लाह सुब्हाना व तआला जो ज़िंदा बच गए हैं, ऐ अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तू ख़ास मदद फरमा। ऐ अल्लाह ताला तू तो चाहे तो एक कलमा कुन ही तो कहना है। ऐ अल्लाह ताला तू एक कलमा कुन कह दे, उनकी मदद के ऊपर अपना कलमा कुन कह दे।
ऐ अल्लाह ताला हम सब आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहे हैं, अपनी जिंदगियों में लौट रहे हैं, उनकी तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा दे, उनकी मदद फरमा दे अल्लाह, उनकी मदद फरमा दे, हमारी दुआएं उनके हक में सुन ले अल्लाह, हमारी दुआएं उनके हक में सुन ले, उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह उम्मते मुसलमान का हर फर्द दुखी है, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं अल्लाह। ऐ अल्लाह तुझे तुझे कोई मजबूरी लाहिक नहीं है। ऐ अल्लाह ताला तू तो सब के ऊपर कादिर है। अल्लाह जालिम पर भी ऐ अल्लाह ताला उसको तू जुल्म से रोक दे। अल्लाह ताला जालिम जो है बहुत हद से बढ़ रहा है, हदें पार कर चुका है। अल्लाह ताला तू मदद फरमा दे। अल्लाह ताला तेरे दीन इस्लाम को गलबा तो आना ही है, जो तकलीफ है उनकी वो देखी नहीं जाती, अल्लाह दूर कर दे। अल्लाह तेरा दीन इस्लाम नहीं मर रहा, वो तो और भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐ अल्लाह ताला जमीन का वो टुकड़ा पैगंबरों की जमीन है अल्लाह, जिसे तूने कुरान में मुबारक जमीन कहा, उस जमीन की हमारे पहले किबले की हिफाजत फरमा दे, दुश्मनों से निजात दे दे, आजादी दे दे अल्लाह, तकलीफें दूर कर दे अल्लाह, मदद फरमा दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत वबरकातुहू। बहुत जज़ाकिल्लाह खैर, बहुत अच्छा पढ़ा रही है माशाल्लाह आप। सुब्हान ताला अल्लाह ताला अल्लाह आपको कबूल हिम्मत दे भाई, हम लोग खूब अच्छे से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और अल्लाह पाक दिल में माशाल्लाह उतार भी रहा है, खूब इंशाल्लाह उतार दे इसी तरीके से। उसी ने उतारना है, उसी ने उतारना है इंशाल्लाह। इंसान गोल के नहीं पिला सकता, जो देने बहुत वाला है अच्छा वो पढ़ा सिर्फ रहे अपनी माशाल्लाह, हिम्मत बहुत आकी अच्छा देता है। पढ़ा अल्लाह रहे। ताला कबूल फरमा ले हमारा, है बस ना, बस कबूल कबूल फरमाए कर और ले इसी ना, पे कायम रखे अल्लाह पाक। कायम दीन पे रखे जो पढ़ रहे हैं हम लोग सही तरीके से निकले, जुबा से दिल में तो उतर रहा है, जुबा से भी निकलना चाहिए सही इंशाल्लाह तरीके से। इंशाल्लाह। ये देखिए बच्चा जब होता है, जब छोटा बच्चा होता है वो उतार रहा है, उतार रहा है, उतार रहा है, तो जब देने पे आता है, जब बोलना शुरू करता है तो क्या होता है, फिर वो दे रहा है और दे रहा, हम कहते हैं खामोश हो जा, वो खामोश नहीं होता, है ना, जी क्योंकि वो जी। देना, अब उसे देना आ गया। तो इंशाल्लाह ताला जब आप अब उतार रहे हैं ना अंदर, अंदर उतारना असल मकसद है इस वक्त। जब आप बाहर उसको प्रैक्टिस में अब निकालें बाहर, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करें, हर बहन दूसरी बहन से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह हम जल्दी बना लेते हैं। तो प्रैक्टिस ग्रुप में फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, बहनें एक दूसरे के साथ मिल जाए इंशाल्लाह। मैं खुद वो अगर प्रैक्टिस ग्रुप है ना हम लोगों का, सिस्टर प्रैक्टिस ग्रुप रिकॉर्डिंग है ऑफ ना, कर दें, तो सिस्टर ज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, आपने मुझे याद करा दिया।